اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں۔ اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں۔ مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9890963757۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر نظر آ سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، سچی خبریں دکھا رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، آگے بڑھے، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ پابندی سے بھیجنا چاہتے ہیں بھیجیے اور چینل کو مضبوط کیجیے۔ ناظرین، آئیے پہلی بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ اب پاپولر فرنٹ آف انڈیا پر جو پابندی لگائی گئی ہے، اس کو لے کر اور آر ایس ایس کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے، اور آر ایس ایس کو لے کر یہ جو خبر ہے گودی میڈیا بالکل بھی نہیں دکھائے گا۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ آر ایس ایس پر پابندی لگائی جائے، اب سچے اچھے ہندو بھی اس بات کو کہہ رہے ہیں، اور اب ہندو خود کہہ رہے ہیں کہ بھئی پاپولر فرنٹ آف انڈیا تو کوئی الزام آج تک ثابت نہیں ہوا، ان پر تو باقاعدہ ملک میں کئی بار پابندیاں لگ چکی ہے، اور بڑے بڑے دنگے فساد سے لے کر ہر چیز میں یہ ملے ہیں، ثابت ہوئے ہیں، نقلی دھاڑیوں کے ساتھ ملے ہیں، بہت سارے ثبوت ہے۔ ایکس جج جو ہے کولسے پاٹل، انہوں نے تو بالکل کھلے عام یہ کہا ہے کہ کتنے فسادات میں یہ شامل ہے اور انہوں نے کتنے بم بلاسٹ کرائے ہیں۔ تو اب لالو پرساد یادو یعنی جے ڈی یو اور بی جے پی آمنے سامنے آ گئی ہے، کیونکہ جے ڈی یو اور لالو پرساد یادو، جسٹس کولسے پاٹل اور ایسے کئی سچے اچھے ہندوؤں کا کہنا ہے کہ پاپولر فرنٹ آف انڈیا سے پہلے آر ایس ایس پر پابندی لگائی جائے۔ اور مایاوتی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ آر ایس ایس کو، صرف آر ایس ایس کو خوش کرنے کے لیے پاپولر فرنٹ آف انڈیا پر بین لگایا گیا۔ مایاوتی کا یہ بڑا بیان آیا ہے۔ وہیں پر اب آر ایس ایس پر جیسی پابندی کی بات ہو رہی ہے تو آر ایس ایس کے بچے بھی بڑے تلملا رہے ہیں، لیکن سچے اچھے ہندو آر ایس ایس پر پابندی کی بات کر رہے ہیں۔ تو اب وزیر اعلیٰ بومئی نے یہ کہا ہے کہ آر ایس ایس پر بین کا پابندی کا مطالبہ بڑا افسوسناک ہے۔ تو پھر تمام جے ڈی یو، لالو پرساد یادو کی پوری ٹیم، مایاوتی، یہ تمام لوگ کہہ رہے کہ اگر آر ایس ایس پر پابندی کا مطالبہ افسوسناک ہے تو تمہاری عقل پر بھی افسوس ہو رہا ہے، کیونکہ آر ایس ایس تو کھلے عام کئی دنگے فساد اور خون خرابے میں شامل رہی ہے۔ اس لیے اب لوگ مطالبہ کر رہے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آر ایس ایس پر بھی پابندی لگائی جائے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ آئی ایس کیس میں عرشی قریشی کو باعزت
बरी कर दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह। NIA अदालत का तारीखी फैसला ये सामने आया है। ये फैसला और इससे मुताल्लिक दीगर जितने मुकदमात हैं उनमें भी अब ये फैसला संगे मील साबित होगा। जमीयत उलमा का बड़ा बयान आया है। IRF से ताल्लुक़ रखने वाले गैर मुस्लिम नौजवानों को मजहब तब्दील करा के दाइश में भर्ती कराने समेत कई संगीन इल्ज़ामात आरशी कुरैशी पर थे, जिसके तहत वो कई सालों से जेल के सलाखों में बंद थे। मगर जमीयत उलमा महाराष्ट्र की कामयाब पैरवी के नतीजे में NIA अदालत मुंबई से बाइज्जत अर्शी कुरैशी की रिहाई अमल में आई। अल्लाह जमीयत उलमा को इसका बेहतर बदला नसीब फरमाएं। जमीयत उलमा ने यह भी कहा है कि इस फैसले से और भी जो दीगर मुकदमात है उसमें भी बड़ा फायदा होगा। ऐसी एक बड़ी खबर आ रही है कि 31 महीनों के बाद, जी हाँ, यानी तकरीबन समझिए कि 3.25 साल के बाद इश्तियाल अंगेज स्पीच, भड़काने वाली तकरीर के मामले में शर्जील इमाम को आखिर जमानत मिल गई। स्टूडेंट लीडर के दिल्ली फसादात में मुल्जिम होने की वजह से फिलहाल रिहाई का इम्कान नहीं है, लेकिन इश्तियाल अंगेज तकरीर मामले में शर्जील इमाम को जमानत मिल गई। शर्जील इमाम अभी जेल के अंदर ही है। यह अलग बात है कि जिन्होंने गोली मारो सालों को और ऐसे अजीब अजीब नारे लगाए थे और जिन्होंने फसाद को खुलेआम भड़काया था, जिनकी वीडियोस पूरी दुनिया ने देखी थी, वो बाइज्जत रिहा है। उन्हें पकड़ा ही नहीं गया, उन्हें जेल के सलाखों में ठूंसा ही नहीं गया। इसको लेकर भी लोग सोशल मीडिया पर मजाक उड़ा रहे हैं और अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ऐसी चीज़ों से कानून की जो इज्जत है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती है और इंसाफ का कत्ल दिखाई देता है। चलिए आइए, अजीब व गरीब खबर इस वक्त आपको सुनने को मिलेगी। जी हाँ, ताजमहल आपको भी मालूम है, आपके अब्बा को भी मालूम है कि किसने बनाया था। सब कहते हैं, छोटे से बच्चे से पूछो ताजमहल किसने बनाया तो वो कहेगा मुग़ल शहनशाह। जी हाँ, शाहजहां ने अपनी बीवी की याद में ताजमहल बनाया। लेकिन इस मुल्क में क्या चल रहा है, हंसी भी आती है, रोना भी आता है। सुप्रीम कोर्ट में एक मामला पहुंचा जिसमें यह अर्जी दाखिल की गई कि शाहजहां के ताजमहल बनवाने का कोई सबूत नहीं है। तो क्या अब इसके बाप ने बनाया था, किसने बनाया था? खैर क्या करें, ये प्यारा मुल्क है और प्यारे मुल्क में इस वक्त सारे असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ऐसे मुद्दे लाए जाते हैं। तो अभी एक शख्स ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है और उसने कहा है कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया, ऐसे कोई पुख्ता सबूत नहीं है। तो लोग सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं कि तेरे अब्बा ने बनाया, ऐसा कोई सबूत होगा। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू। नाज़रीन, झारखंड से एक बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। जहाँ लिंचिंग के मामले लगातार चल रहे हैं और मुस्लिम दुश्मनी की लगातार खबरें आ रही है। झारखंड से एक बड़ी दर्दनाक खबर आ रही है कि मौलाना अताउल्लाह खान साहब को मार दिया गया और उनकी लाश जला दी गई, जिसमें बजरंग दल के आतंकी गुंडे मुलव्विस हैं। मध्य प्रदेश के शहडोल जिला में 26 सितंबर को जंगलाती इलाके से मौलाना अताउल्लाह कासमी की नाश जली हुई, झुलसी हुई हालत में दस्तयाब हुई है। इस दौरान जामिया टाइम्स ने ट्वीट किया और लिखा कि झारखंड के रहने वाले, यानी झारखंड में ये वाक़या नहीं हुआ, रहने वाले झारखंड के थे मौलाना अताउल्लाह कासमी, इनको बजरंग दल के आतंकी गुंडों ने जलाकर जंगल में फेंक दिया। अभी आपने जैसे अहमदाबाद में देखा होगा कि बजरंग दल वाले बाकायदा ऐसा लगता है कि जैसे गुजरात में पुलिस वालों की कमी हो गई है तो बजरंग दल वाले आतंक मचा रहे हैं, ऐसे ही उनकी ही आतंक का एक ये और वाक़या सामने आया। इसीलिए लोग अब सच्चे अच्छे हिंदू भी कह रहे हैं कि बजरंग दल हो, विश्व हिंदू
हिंदू परिषद हो, RSS हो, इन तमाम पर भी बाकायदा बैन लगाया जाना चाहिए। खैर, अताउल्लाह कासमी झारखंड के पलामू जिले के रहने वाले थे। कासमी साहब 21 सितंबर से लापता थे और उन्हें आखिरी बार अपने जानने वाले की मोटरसाइकिल पर शहडोल जिला के गांव की तरफ जाते देखा गया था। पुलिस ने कहा कि शिव शंकर यादव 28 साल ने पूछगछ के दौरान अपना जुर्म कबूल कर लिया है। मुजरिम ने बदला लेने के लिए अताउल्लाह खान को मारा है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नए सदर, न्यू प्रेसिडेंट को लेकर। जी हाँ, अब खबरें हैं कि नए सदर का इंतखाब होगा। शशि थरूर, मल्लिकार्जुन खड़गे और KN त्रिपाठी ने नामजदगी का पर्चा दाखिल किया है। कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन मधुसूदन मिस्त्री ने सहाफ़ियों से बातचीत में ये बात कही कि जिन 3 उम्मीदवारों ने सदर ओहदे के लिए नामजदगी का पर्चा दाखिल किया है उनमें ये लोग हैं शशि थरूर, मल्लिकार्जुन खड़गे और KN त्रिपाठी। जहाँ तक अशोक गहलोत की बात करें तो अशोक गहलोत का सारा मामला सामने हमने गुज़िश्ता कल ही रख दिया था और हमारे अपने नदवी टाइम्स, साप्ताहिक हिंदी नदवी टाइम्स में भी पूरी डिटेल लिखी थी कि अशोक गहलोत ने माफ़ी मांग ली, पीछे हट गए हैं और अपने मुख्यमंत्री पद को बचा लिया है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मथुरा से, उत्तर प्रदेश के मथुरा से। मथुरा में विकास इसी का नाम है, सिवाय बदमाशी, शरारत और शैतानी के कोई काम नहीं। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि तनाज़े में अब एक नई सरगर्मी सामने आई है कि अब वहाँ पर मीना मस्जिद जो है उसको हटाने के लिए अर्जी दाखिल की गई है। मथुरा में वाक़ई श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मामले पर समाअत अदालत में अभी चल ही रही है कि इस दरमियान मथुरा की अदालत में एक नई अर्जी दाखिल होने से और मजीद हलचल पैदा हो गई। ताज़ा अर्जी में मीना मस्जिद को दूसरी जगह मुंतकिल करने का मुतालबा किया गया है। अर्जी दहिंदा का यह दावा है कि यह मस्जिद केशव देव मंदिर की ज़मीन के हिस्से पर बनाई गई है और मस्जिद को दूसरी जगह मुंतकिल किया जाना चाहिए। अदालत ने इस मामले में समाअत के लिए आइंदा 26 अक्टूबर की तारीख भी मुकर्रर कर दी है। मीना मस्जिद को उसकी जगह से हटाकर दूसरी जगह मुंतकिल करने से मुताल्लिक अर्जी वकील दीपक शर्मा ने दाखिल की है। देवबंद दारुल उलूम से बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि दारुल उलूम देवबंद की इंतजामिया ने तलबे दारुल उलूम की तिजारती सरगर्मियों पर पाबंदी का ऐलान कर दिया। इदारे की जानिब से जारी की गई सख्त हिदायत और ये भी कहा गया कि जो भी तालिब इल्म खिलाफ वर्जी करेगा, खिलाफ वर्जी की सूरत में उसका इखराज कर दिया जाएगा, यानी उसे मदरसे से निकाल दिया जाएगा। अजीम इल्मी दानिशगाह दारुल उलूम देवबंद ने तलबा की बिजनेस या तिजारती सरगर्मियों या दीगर मसरूफियात पर, तालीमी मसरूफियात के अलावा, इल्मी मसरूफियात के अलावा दीगर मसरूफियात पर सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए हिदायत दी के इदारे के उसूल पर पाबंदी करते हुए दारुल उलूम देवबंद में दाखिले के अपने मकसद को समझें और अपना मुकम्मल वक्त तालीमी सरगर्मियों में सर्फ करें, बसूरत दीगर इखराज कर दिया जाएगा। एक्चुअल में कुछ तलबा है जो वहाँ रहकर थोड़ा सा कारोबार, बिजनेस या तिजारत पर भी ध्यान देते हैं और कहीं ना कहीं वो अपने असल तालीमी इल्मी मकसद से दूर रहते हैं। इसको देखते हुए बाकायदा दारुल उलूम देवबंद की इंतजामिया ने सख्त इंतबाह वार्निंग दी है। महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। मुंबई से हमारे रिपोर्टर मुफ्ती अबू अयूब ने बताया कि महाराष्ट्र हुकूमत ने भैंसों के ट्रांसपोर्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लंपी वायरस की वजह से दीगर जानवरों समेत भैंसों पर भी पाबंदी आयद की गई थी, लेकिन MLA रईस शेख साहब की लगातार कोशिशें, विखे पाटिल साहब से मुलाकात का असर यह हुआ है कि अभी खबरें आ रही है कि अब महाराष्ट्र हुकूमत ने भैंसों के ट्रांसपोर्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। महाराष्ट्र में लंपी वायरस का कोई खास असर नहीं हुआ। ये बीमारी गाय की नस्ल को ही हुई है, जबकि भैंसों में इस बीमारी के कोई आसार नजर नहीं आए। इसके लिए समाजवादी के MLA रईस शेख ने कुछ तंजीमों के साथ मिलकर मवेशी पालन मंत्री विखे पाटिल से भैंसों पर से पाबंदी हटाने का मुतालबा किया था, जो अब कामयाबी को पहुंच गया और भैंसों के ट्रांसपोर्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए।
और नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है रियासत गुजरात से। हमारे रिपोर्टर मुफ्ती इस्माइल सुमरा ने बताया कि मुंबई अहमदाबाद वंदे मातरम एक्सप्रेस को मोदी जी ने हरी झंडी दिखाई। वज़ीर आज़म, इस मौके पर गवर्नर, वज़ीर आला और दीगर अहम शख्सियात ने भी कुछ दूर तक साथ सफ़र किया। वज़ीर आज़म मोदी ने जुमा के रोज़ आत्मनिर्भर भारत की नई पहचान बनी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को गांधीनगर कैपिटल स्टेशन पर हरी झंडी दिखाई और कालूपुर में वाक़े अहमदाबाद स्टेशन तक का सफ़र भी किया। स्क्रीन पर आप फोटो देख सकते हैं कि किस तरह वो अपने खूबसूरत चेहरे के साथ बच्चियों से बातें करते हुए और मुस्कराते हुए नज़र आ रहे हैं। जब वो गांधीनगर स्टेशन पर पहुंचे तो वज़ीर आज़म के साथ गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल, गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत और रेलवे के मरकजी वज़ीर अश्विनी वैष्णव और हाउसिंग और शहरी उमूर के मरकजी वज़ीर हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद थे। दाद, खाज, खुजली का जल्द से इलाज डॉक्टर शेख नाजिम से कांटेक्ट कीजिए 8983547069 पर। जोड़ों का दर्द, पाइल्स, बवासीर, एसिडिटी, वजन का कम करना, गुर्दों और मसानों की पथरी, गुप्त रोग, बालों का झड़ना और सफेद होना, इन तमाम बीमारियों के इलाज के लिए हिंदुस्तान आयुर्वेदिक सेंटर जलगांव। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।